Yes, sir, screen is visible, sir. Kaustubh, sir. Okay, thank you. So, good afternoon, friends. I hope you all are there. So, friends, as we are going ahead for our sessions regarding this online 14th faculty induction program, and the very first session, it will be on environmental issues, that is in quest for sustainability. And our opening batsman, we can say, is respected Kaustubh Chatterjee, sir. Sir, I welcome you on behalf of all the participants and on behalf of UGC, MMTTC, RTM Nagpur University. A warm welcome to you, sir. Thank you. Friends, it's an honor to introduce respected Kaustubh Chatterjee, sir. He is a founder of Green Vigil Foundation. Sir has qualified post-graduation in environmental science from Government Institute of Science, RTM Nagpur University. He is a gold medalist in postgraduate diploma in marketing and sales management, as well as postgraduate diploma in business management. He is also postgraduate in ISO 1400 and environmental management and human resource development. As I have already mentioned, he is a founder of Green Vigil Foundation, a registered non-profit organization with expertise in environmental domain and a vision of shared sustainable future in the planet through education and mobilization of all stakeholder groups. Sir and his foundation have been honored with 66 and more local, national and international awards for outstanding contribution towards environmental protection and sustainable development. Sir is having more than 29 years of experience in the field of environmental science. He is also visiting faculty at Postgraduate Department of Environmental Science at various colleges at Nagpur and a resource person at our own UGC HRDC as well as Aurangabad HRDC. He is the advisor on environmental issues to Nagpur Municipal Corporation. He is a brand ambassador for Nagpur for Swachh Bharat Mission. He has been appointed as honorary advisor to NMC for Swachh Sarvekshan. So friends, with this brief introduction, I once again welcome respected Kaustubh Chatterjee, sir, and I kindly request you, sir, to please start your first session. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Good afternoon to all. This is Kaustubh Chatterjee, and Dr. Preeti has introduced me about my NGO and all. But other than this, I would like to add on that I am working in a multinational company as a vice president, and we design wastewater treatment plant. Company name Concord Enviro, and we are designing wastewater treatment plant for any industrial sector. And I have been working in this field for last 30 years, and I have designed, erected, and commissioned more than 300 wastewater treatment plants, sewage treatment plant across the country and abroad. This is a small introduction. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. At the outset, I would like to know one very basic question, that what I want is that I can talk in three languages basically. One is English as I'm talking now, one is complete Hindi, and one is Hinglish. That is a mixture of Hindi and English. So you guys please confirm which language. Saurabh ji Hindi bol rahe. Good. Be frank. Absolutely be frank in saying that which language you want. Because क्या है कि I don't want कि पूरा 1.5 घंटा बात करने के बाद अगर हम आप तक पहुंच नहीं पाए तो फिर कोई मतलब नहीं आएगा. एंड प्रकाश जी कह रहे हैं कि इंग्लिश, राजेश इंग्लिश. Okay, there are some English also. Fine. Basically, my experience goes like this: कि those are from South. Basically, they prefer English, of course.
Okay, so I will English going for more. So I will give my presentation is very much self-explanatory. Okay, so we will go with Hindi and English. Fine. Okay. And सर one more आपल्याला thing, मराठी जर येत असेल तर त्यातही बरं होईल आहे. सर ते हिंदी, बड़ा मराठी- होईल, पर जो बाकी लोग हैं वो उनको नहीं समझेगा ना सर. सबको समझता है. सर जो हिंदी के लिए नहीं बोल रहे हैं सर, वो मराठी के क्या सर समझेंगे आपको सर. सर तीनों लैंग्वेज में अगर आप कर सकते हो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा. हिंदी इंग्लिश में करते हैं. मराठी बोल लेता हूँ, समझ लेता Yes, हूँ, sir, पर we थोड़ी will go with कमजोरी Hindi है. and English, sir. ओके, चलिए We can't understand Marathi, sir. चलिए शुरू करते हैं. English and Hindi is better, sir. राइट. डन 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 डन. आई गॉट इट. थैंक यू. तिन्ही मेरे लँग्वेज मध्ये साथ कोर्स आहे सर. जी. हेलो, हाँ बोलिए. बोलिए क्या बोल रहे हैं आप. तीनों लैंग्वेज में रहा तो अच्छा रहेगा बोला. कुछ यानी Right, ऐसा sir, नहीं बोल okay. रहा कि पूरा मराठी में बोलिए करके. नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा. चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति एंड एजीएफ जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया कि फर्स्ट लेक्चर. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन क्वेस्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी. एनवायरनमेंट की बात करते हैं. दीपांतु रॉय, गुड आफ्टरनून. ओके, हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट today's presentation with a movie poster. एक मूवी पोस्टर से हम आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे. आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने इस मूवी को देखा होगा. ये अक्षय कुमार जी का मूवी था जिसमें एक व्यक्ति जो पक्षियों से बहुत प्रेम करता है, वो उनको ऐसा लगता है कि जो मोबाइल टावर से जो तरंगे हैं, वो तरंगे के कारण पक्षियों की मौत हो रही है. वो एज एन एक्टिविस्ट ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट, लोगों के पास जाते हैं, बोलते हैं, बट नोबडी लिसन टू हिम एंड देन he commits suicide and he come back as Pakshi Rajan and he just takes away the mobiles. सभी लोगों से अपना मोबाइल छीन लेते हैं और हम ह्यूमन की जिंदगी की बैंड बज जाती है सिर्फ मोबाइल चले जाने से. इसी पे ये मूवी पूरी आधारित है. ये मूवी मैं का पोस्टर में इसलिए दिखाता हूं बिकॉज द कैप्शन मुझे बहुत पसंद है. द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस. हम इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के एक बहुत छोटी सी कड़ी है. हम इस इकोसिस्टम के एक छोटे से पार्ट है. बट वी फील दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. हम ब्रह्मा विष्णु महेश को हम चैलेंज कर रहे हैं और हम इस पृथ्वी को जो मर्जी करना चाह रहे हैं और पृथ्वी जवाब दे रही है. जस्ट सोचिए, जैसे कि इस मूवी में पक्षी राजन जी थे, उसी तरह से अगर किसी वक्त कहीं पे सडनली यहां पे वृक्ष राजन जी आ जाते हैं और वृक्ष राजन जी आके अपने सभी वृक्षों को बोलते हैं कि एंड ही इंस्ट्रक्ट कि भैया प्लीज स्टॉप ऑक्सीजन सप्लाई टू ह्यूमन रेस जस्ट फॉर 10 मिनट्स. अगर 10 मिनट हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी. एट द टाइम ऑफ कोविड-19 वी हैव सीन कि एक वायरस ने किस तरह से हमें घर के अंदर बंद कर दिया था. फिर भी आज भी हम अपने आप को इस पृथ्वी के रचयिता सोचते हैं. हम पेड़ काट रहे हैं, हम धड़ल्ले से प्रदूषण कर रहे हैं, हम पूरे शहर के, गांव के इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेस को नहीं मानते, हम जलवायु परिवर्तन को नहीं मानते, हम सिर्फ औद्योगिकरण के पीछे भाग रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के पीछे भाग रहे हैं. बट दोस्तों, पृथ्वी जवाब दे रही है. जब हम आज इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम टाइम द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज अंडर फ्लड. ये सच्चाई है. फ्लड पहले भी आए, फ्लड आज भी आते हैं, चक्रवाती तूफान पहले भी आए, अभी भी आते हैं, पर इनकी जो फ्रीक्वेंसी है
वो इतनी ज्यादा अभी बढ़ गई है, और ये सारे के लिए आज हम इसके लिए उत्तरदायी है. सो द प्रेजेंट सिचुएशन वेयर वी आर, हु विल सेव अस? हमें कौन इससे बचाएगा? गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तो आपको लगता है कि भगवान जी फिर से आएंगे हमको इस प्रदूषण नामक राक्षस से बचाने के लिए? मुझे तो नहीं लगता है. तो भगवान जो है ये महान है, ये पूजनीय है, ये श्रद्धेय है, पर ये हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे. इनसे हम मन्नतें मांग सकते हैं, हम इनसे हमारा दुखड़ा रो सकते हैं, ये हमारे साथ है, हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है. पर आज पर्यावरण नामक इस दानव से, प्रदूषण नामक इस दानव से पर्यावरण को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए ये नहीं आएंगे. अगर ये नहीं आएंगे तो फिर कौन बचाएगा हमको? हमें बचाएगा ये. ही इज द कॉमन मैन. कॉमन मैन मतलब मैं और आप. मुझे और आपको ही कुछ करना है. अगर मैं और आप कुछ करेंगे तो ही हम इस मेस जो हमने क्रिएट किया, द मेस व्हिच वी हैव क्रिएटेड, and all the environmental pollution and all the problems, it's only this common man, me and you, me and those who are listening to me. We are here. We are here. If we can do something, then only we can save this world. So let's start with air pollution. There are some facts which I'm putting across you. This I'm not saying ये UNEP के facts है. 9 out of 10 people worldwide, 9 out of 10 people worldwide breathe polluted air. It causes 7 million premature deaths annually. 4.2 million deaths every year due to exposure to ambient outdoor pollution. As per World Health Organization, 4.2 million deaths every year, हर साल 4.2 million मौतें होती हैं एयर पोल्यूशन के कारण. देखिए, अगर हम फिगर पे गौर करें तो शायद आज प्रदूषण कोविड से भी भयानक है. हम कोविड में तहस नहस हो गए थे. वी वर ऑल वरीड अबाउट द कोविड-19, बट यू सी द फिगर across the world, 4.2 million deaths every year by exposing to outdoor air pollution. So now let's talk first about global warming. How many of you know about the basic of global warming? आप ऐसे कितने हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के बेसिक जानते हैं? देखिए, मैं जो आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मेरे साथ में मेरा टैब मैंने खोल के रखा है अलग से. अगर आप उसके कमेंट में कुछ लिखेंगे तो मेरे को डायरेक्ट दिख जाएगा. सो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं जानना चाहता हूं. एंड मैं चाहता हूं कि आज का जो इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं थोड़ा, तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा बोर हो जाएंगे. क्योंकि जब हम कॉलेज में थे, यू ऑल नो यार, जब कॉलेज में थे 45 मिनट्स का क्लास करना ही मुश्किल होता था, और यहाँ तो इतना लंबा है. और वो भी उस समय जो पढ़ाने वाले वो सामने खड़े रहते थे. यहाँ तो कोई रिमोट से बोल रहा है, सिर्फ चेहरा दिख रहा है. Yeah, the reply is coming, dropping in. Yes, sir. Aware of green general idea. Polluted gases, sir. Yes, sir. Due to greenhouse effect. Yes, sir. Okay, fine. So, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है. जिन्हें नहीं पता है उनके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. जस्ट अ मिनट. Global warming refers to the average temperature rising of the atmosphere. हम सब जानते हैं कि since 1900 से अगर हम देखें पिछले 100 साल 120 साल में, the temperature जो है of the global temperature that has gone up by 1.1 degree. और ये चिंता का विषय है. Since last 100 years, the temperature has gone up. The average temperature has gone up by 1.1 degree centigrade. That's the concern. That's the worry. कि अगर इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता गया
then survival on this earth will be very difficult. Now, scientists are linking it with climate change, जलवायु परिवर्तन. एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रक्रिया है, इफ यू सी इट, you can see the sun rays should come to earth, hit the earth and go back to the outer space. So here you can see that the sun ray is coming and hitting the earth surface और उसके बाद इसको स्पेस में वापस जाना चाहिए. बट ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, द ब्लू कलर, दिस इज द ग्रीन हाउस गैसेस. This is getting emitted due to human activity, anthropogenic activity, और जिसके कारण ये एक वलय बन जा रहा पृथ्वी के ऊपर में. तो जो सूरज की रोशनी है वो पृथ्वी को आके टकरा तो रही है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, बट इट इज नॉट एबल टू गो बैक टू द स्पेस. इट इज आइदर गेटिंग रीडायरेक्टेड और गेटिंग एब्सॉर्ब. सूरज की रोशनी टकरा रही है पृथ्वी की सतह को मगर वापस नहीं जा पा रही है. इस प्रदूषण के वलय में ये एब्सॉर्ब होकर रह जा रही है. ये आप देख सकते हैं, कारण से पृथ्वी के सतह का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है. और यही कारण है जिसके लिए आज पूरा विश्व परेशान है, चिंतन मंथन चल रहा है. There are so many environmental problems, but the main concern at the moment is global and climate change. Because this global warming and climate change एक ऐसा issue है, this is threatening the life on earth. अगर हम आज भी नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में, मेरी 100 साल में पृथ्वी पे लाइफ कितना रह पाएगा वो क्वेश्चन मार्क है. So this is a simple way of explaining the greenhouse gases impact on the global warming. Now come to climate change. बहुत लोग ये कहते हैं, अरे पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, इस साल इतनी बारिश हो रही, जलवायु परिवर्तन. No, climate change refers to the variation in the Earth's regional climate over time. It's not that 1 year or 2 years. The change which has occurred in decade. मैं अभी इसमें देख रहा था कि there are few Bengali friends who are listening today. I hope they are Bengali because the surnames से लगा है, तो they will know it more. रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पोएम लिखा था, उसमें उन्होंने अमीरी और गरीबी का कंपैरिजन किए थे. तो उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था अपने पोएम के माध्यम से चेरापूंजी को कि थोड़े से बादल क्या आप उधार दे सकते हो. उनके लिखने का मतलब था कि जिनके पास बहुत है वो जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें थोड़ा दे सकते हो क्या, क्योंकि चेरापूंजी में 12 महीने बारिश हुआ करती थी और सहारा मरुस्थल है तो सूखा है. बट आज अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी वापस आएंगे तो चौंक जाएंगे ये देख के कि सहारा मरुस्थल में बारिश शुरू हो गया है और चेरापूंजी में बारिश कम हो गया है. तो ये क्लाइमेट चेंज है. जैसा कि मैंने आपको बताया, चक्रवाती तूफान, द साइक्लोन्स, दिस इज अ कॉमन प्रोसेस, काफी बार आते हैं. इफ जियोग्राफी ऑफ इंडिया, you can see that V portion in the bottom, V, and we are surrounded with sea, Arabian Sea and Bay of Bengal. Bay of Bengal से चक्रवाती तूफान बहुत आते हैं, मगर आज जो आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है. एक खत्म नहीं होता कि दूसरा आता, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा आता. समुद्र की सतह गर्म हो रही है, समुद्र का टॉप लेयर गर्म हो रहा है. आप लोग पढ़ रहे हैं एल नीनो, ई नीनो, ये हजारों चीजें बीच में आ रही है. ये सारे प्रकृति में जो घट रहा है, इन सब का जो इंपैक्ट हो रहा है, और जो जलवायु परिवर्तन को हम बोल रहे हैं, जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो रही, जहां सूखा पड़ता था वहां बारिश हो रही है, जहां बारिश होती थी वहां बारिश कम हो गया है.
पक्षियों के प्रजनन का समय बदल गया है, फूलों के खिलने का समय बदल गया है, पूरा अनप्रडिक्टेबल हो गया है, पूरा जो चारों तरफ की जो आबहवा जो है। तो ये है बेसिकली क्लाइमेट चेंज। सो देखते हैं कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या होने वाला है? क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो सबसे पहले आपके राइजिंग सी लेवल, समुद्र का जो लेयर है वो ऊपर आएगा, और समुद्र का लेयर ऊपर आने से क्या होगा? जो शहर, जो देश समुद्र के तट पे है, उनके अंदर पानी घुसेगा, वो शहर, वो देश पानी के अंदर जाएगा। ऑन ए लाइटर पार्ट, आज हम कहते हैं कि मथुरा नगरी समुद्र के अंदर है, ये सोशल मीडिया में बहुत चलते रहता है। तो शायद आज से 200 साल बाद ऐसा होगा, एक शहर था, नाम था मुंबई, बड़ा अच्छा शहर था, बड़े बड़े बिल्डिंगें थी, पर आज समुद्र के अंदर है। अगर समुद्र का लेयर ऊपर आएगा, क्यों ऊपर आ रहा है? बिकॉज जो ग्लेशियर्स है, जो आइस कैप्स है, वो पिघल रहे हैं। द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ड्यू टू विच द वाटर इज कमिंग टू द सी एंड द सी लेवल इज गेटिंग अप। इंटेंस ड्राउट, सूखा पड़ रहा है। स्टॉर्म्स, जो मैंने आपसे कहा, चक्रवाती तूफान हर 15 दिन में एक आ जाता है। हीट वेव्स, वार्मिंग ओशन, समुद्र गर्म हो रहा है। अगर समुद्र गर्म होगा तो एक्वेटिक इकोसिस्टम तहस नहस होगा। चेंज इन प्रेसिपिटेशन, रेन्स। मैं आपसे आज नागपुर से बात कर रहा हूं। इस बार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मॉनसून जो है वो 18 दिन पहले। अब आप सोचिए, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपको मालूम है समर में आते हैं, 20 दिन पहले आ जाएंगे, तो कितनी तकलीफ होगी। ये तो पूरे हमारे विश्व के साथ हो रहा है। बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट, इसके ऊपर तो पिक्चर बन गया केदारनाथ, क्लाउड बर्स्ट के ऊपर में। माननीय सुशांत सिंह राजपूत ने बेहतरीन एक्टिंग करी उसमें, नमो नमो है शंकरा। तो आपने देखा उसका भयानक रूप। तो ये इंपैक्ट है जो आज घट रहा है। तो आज मुद्दा ये उठता है, तो ठीक है, पता है आगे क्या, तो इसको रोकने के लिए क्या? इसको रोकने के लिए, अच्छा, उसके पहले हम देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर कर रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर विच इज मेकिंग द is the electricity and heat production, about 25%. All this thermal power, we need electricity. They are producing about 20, they are having the load of the 25% of the pollution. Then agriculture, forestry and other land use. Oh my God. Agriculture, how can it be agriculture? क्यों? Delhi में आपने देखा है, in Delhi you have seen pearly burning. You have seen how Delhi gets choked when Haryana burns the agriculture field. Then industries, all industries together, it makes around 21% of 21% of contribution to the pollution, and transportation 14% and other 10%. This is more or less the distribution, global distribution of all the pollution which is being happening. So who are the major players? कौन है जो ये कर रहा है? चाइना 30%, गौर करिएगा, चाइना 30%, यूनाइटेड स्टेट्स 15%, पूरा यूरोपियन यूनियन मिला के 9% and India 7%. So friends, we are a major player. We are a major player in this global pollution economy. We are at 4th or 5th, so we play important role.
रशियन फेडरेशन 5%, जापान 4%, और चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड रशिया, ये तीनों को अगर आप मिला लें तो करीब 65-70%। और बाकी जितने देश हैं, all countries together, they are only 30%. So we have a big say, we have big job to do, because हम 7% contribute कर रहे हैं. तो guys, to stop this, क्या हो रहा है globally? So here comes the Paris Agreement. The entire world has signed Paris Agreement. We will discuss about Paris Agreement because today the world scenario is governed by Paris Agreement. Paris Agreement 2015 में आया. इसके पहले मैं थोड़ा सा आपसे 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि is it okay the way we are going? Am I able to reach you? आपको समझ में आ रहा है? Yes, आप sir. बोल Yes, तो sir. नहीं Very रहे? much. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये आप थोड़ा अनम्यूट करके बोल सकते हैं. आप बोर तो नहीं Yes, हो sir. रहे? बहुत अच्छा समझा रहे हैं. yes, sir. Very क्योंकि good going, जो मेल Yes, sir. पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑन अ लाइटर पार्ट, जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए विशेषता कहना चाहूंगा. मेल पार्टिसिपेंट्स के लिए धीरे से कहना चाहूंगा. जब स्टूडेंट्स थे बॉस, 30 मिनट बैठना ही मुश्किल होता था कॉलेज में, और यहां तो भैया 1 घंटे के ऊपर बैठना है. तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम इसको ह्यूमरस करें, थोड़ा मजेदार करें, थोड़ी बातचीत करें. एंड ऐसा तो नहीं है कि मुझे सब आता है. सिर्फ पर्यावरण की बात कर रहे हैं इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा आता है. आज आप लोग अलग अलग फील्ड के हैं. कोई केमिस्ट्री के होंगे, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. हमारी तो दोस्ती शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं थी, और मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे हुए सभी बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, क्योंकि आप टीचिंग फील्ड में हैं. पर यकीनन इसमें बहुत लोग हैं जिनको मेरे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दोस्ती नहीं थी. हमने बहुत कोशिश करी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दोस्ती करने की, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जो हमसे कभी दोस्ती किया ही नहीं. अब आप बताइए यार, बेंजीन रिंग में एक ठो गोला ज्यादा रहा या नहीं रहा, कौन सा पृथ्वी हिल जाएगी? पर हमारे मार्क्स हिल गए. वो तो बधाई हो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसने हमें हमारा बेड़ा पार करवाया. नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती, फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक ने बेड़ा पार कराया. तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है, मैं चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं एनवायरनमेंट के विषय है, बट इसको बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊं, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, एवरीबडी कैन इंटरेक्ट एंड एवरीबडी कैन एक्ट. जो हम कह रहे हैं उसके बाद ये आप आगे कैरी करें, क्योंकि आप टीचिंग लाइन में हैं और आप सब मेरे नजरों में आचार्य द्रोण हैं. तो अगर आचार्य द्रोण से हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं जरूर ये उम्मीद करूंगा कि आपके 100 विद्यार्थियों में से एक अर्जुन, एक भीम, एक दुर्योधन तो बनेगा. दुर्योधन आदमी कैसा था वो अलग बात है, पर गदाधारी के रूप में वो महान थे. चलिए, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया. जब इन सबको लगा, पूरे विश्व को लगा, देखिए 2015 के पहले क्योटो प्रोटोकॉल था. क्योटो प्रोटोकॉल 2012 में खत्म हो गया. क्योटो प्रोटोकॉल में भी all the countries they have pledged कि we will cut down our carbon emission. हम हमारे कार्बन एमिशन को कम करेंगे. और क्योटो प्रोटोकॉल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ बिग ब्रदर सबको बोल के साइन करो,
क्योटो प्रोटोकॉल में साइन करो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सभी से साइन करवा लिया, पर अमेरिका खुद ने साइन नहीं किया। ये क्योटो प्रोटोकॉल की सबसे ज्यादा कमजोरी रही। पर जब पेरिस एग्रीमेंट आया तो यह निर्णय लिया गया कि आप विकासशील देश हो, विकसित देश हो, आपको साइन करना है, क्योंकि पृथ्वी सबकी है। जैसा बॉर्डर पिक्चर में गाना है कि ये परिंदे और ये हवा के झोंके ये देश के बॉर्डर को नहीं मानते, वो इंसानों के लिए। तो प्रदूषण कहीं हो रहा है और हम बोलेंगे हमारे यहां मत आओ, ऐसा तो नहीं होगा बॉस। सो ये पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य यही है जो नीचे लिखा है। The temperature, the global temperature which has gone up by 1.1 degree in last 120 years should not cross 2 degree, or we should make our best attempts to stop it at 1.5 degree, the rise. So 1.1 is already done. So what we have to do, we have to cut it to 1.5, means only 0.4 rise is allowed, or at least cut it to 2 degree. So efforts उसी का करना है। So Paris Agreement came in force in 2016, 4th November, or there is a click in the Paris Agreement. As Kyoto Protocol was not that effective because United States of America didn't sign, so it was made compulsory कि पूरे प्रदूषण करने वाले देशों में 55% प्रदूषण करने वाले देश अगर साइन करेंगे तो ही पेरिस एग्रीमेंट लागू होगा। Means, as I have shown you, so many countries together make only 30%. So Paris Agreement will come in force only if 55% pollution generating countries they sign this agreement. So India ने भी इस पे साइन किया। Now read the third para carefully. The United States of America ratified the agreement on 3rd September 2019. 2019 में उन्होंने साइन किया। However, within a month, 2019, the government of United States of America notified the Secretary General of his decision to withdraw from the agreement. तब हमारे माननीय ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साइन तो कर दिया, ये साइन करके गड़बड़ हो गया। आपको कार्बन एमिशन को कम करना, यू हैव टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। हाउ यू टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, जेंटलमैन? You have to cap your industry. If you cap industry, it will have a direct effect on your economy. और कोरोना कोविड के बीच में भी उन्होंने अपनी इकोनॉमी बंद नहीं करना चाहे थे। तो पेरिस एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करने के एक अंदर में उन्होंने कहा कि हम पेरिस एग्रीमेंट से बाहर जा रहे हैं, और पूरे पेरिस एग्रीमेंट के न्यू को हिला दिया। बिकॉज जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया है, 15% ऑफ द एंटायर पोल्यूशन सिनेरियो इज बाय अलोन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप देखिए कि द एनवायरनमेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। इन द नेक्स्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो ने कहा, अगर मेरी पार्टी चुन के आती है और अगर मैं चुन के आता हूं तो हम पेरिस एग्रीमेंट में वापस जाएंगे। ये उनके मैनिफेस्टो में था, और बिडेन साहब चुन के आए, बिडेन साहब वापस गए। बट अगेन ट्रम्प साहब आए 4 साल बाद, और ट्रम्प साहब अगेन पेरिस एग्रीमेंट से बाहर गए। बट अभी ट्रम्प साहब के बाहर जाने का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, कारण इतने दिनों में लोगों को समझ गया है कि बॉस अब तो बैंड है,
नाउ एवरीबडी हैव अंडरस्टूड कि बॉस अगर पेरिस एग्रीमेंट अगर नहीं रोके ग्लोबल टेम्परेचर राइज को तो गुरु बैंड बजेगी। तो इसलिए ट्रम्प साहब के पार्टी के खुद के लोग ट्रम्प साहब पे जोर डाल रहे हैं कि भैया बाहर वापस चलो। तो चलिए वो तो ट्रम्प साहब की बात है, वो क्या करेंगे पता नहीं। अब ट्रम्प साहब तो ये भी क्लेम करते हैं, ट्रम्प साहब ये भी क्लेम कर बैठते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध था, जो शुरू ही हुआ था, वो ट्रम्प साहब ने रुकवाए, जबकि असल में ऐसा तो अभी पता चल रहा है ऐसा नहीं है। दोनों देश के लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प साहब का उतना कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं। एनीवे पता नहीं, मतलब देखिए ये जो घटना है इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है, कौन सही बोल रहा है कौन, ये कैसा मैच हुआ भाई जिसमें दोनों टीम जीत गया। वहां पाकिस्तान के लोग मना रहे हैं कि हम जीत गए, या हम मना रहे हैं कि हम जीत गए। जब हम पाकिस्तान में बॉम्बिंग कर रहे थे तो हमारे सारे न्यूज चैनल बता रहे थे कि हमने उनके फाइटर जेट गिरा दिए, हमने उनके पायलट को पकड़ लिए। किधर है? और आप सभी यू टर्न मान लिए। कौन ये खबरें देता है, कौन इसकी सच्चाई देखता है? और ऊपर से ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं एज ए बिग ब्रदर मैंने इनके बीच में समझौता कराया, वो भी तो ठीक नहीं है। एनीवे तो अभी हम आते हैं कि इंडिया ने क्या प्रॉमिस किया है इस पेरिस एग्रीमेंट में। तो अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने, गौर करिएगा, इंडिया ने यह प्रॉमिस किया 2016 में कि बाय 2030 we will reduce our carbon emission by 33 to 35% than what we used to do in 2005। अर्थात गौर करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक देश जो विकासशील देश है, वो देश 2016 में खड़े होकर बोल रहा है कि 2030 तक हम जो कार्बन एमिशन 2015 में करते थे हम उससे भी 35% कम करेंगे। अरे भाई आप 2016 में खड़े हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप विकासशील से विकसित बन रहे हो, तो आप तो और कार्बन एमिशन करोगे जनाब। तो आप 2005 में जो कर रहे थे उससे 35% कम कैसे करोगे? तो इंडिया का दूसरा प्रॉमिस था कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो इसलिए हमारे पास बहुत स्कोप है करने का। तो वी विल कन्वर्ट 40% ऑफ द पावर टू नॉन फॉसिल सोर्सेस बाय 2030। अर्थात 2030 तक हमारा जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको हम नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे। और हम भारी मात्रा में पेड़ लगाएंगे which will act as a carbon sink। So those who are Maharashtra, they can remember that about 6 years back when Honorable Devendra Fadnavis was our chief minister, he implemented about 50 crore plantation in Maharashtra। So that attempt, I am not talking about the success of that, I am talking about uska jo attempt tha, that attempt was towards India's commitment to Paris Agreement। तो अब इंडिया ने ये प्रॉमिस तो किया, तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये प्रॉमिस सही है, क्या इंडिया निभा रहा है, या कस्में वादे प्यार वफा के वादे हैं, वादों का क्या। तो अगर हम गौर करते हैं तो 2021 तक ही, हम 25 में, ये बीच का माइलस्टोन है, टिल 2021 our fossil fuel based capacity
हैज बीन डिक्लाइंड, कम हुआ 69.8 से 63.5, और सोलार कैपेसिटी बढ़ा 1.5 टू 7.4, 2-1 की बात कर रहा हूं। और अगर हम आज की बात देखते हैं, so India has brought down its emission by 21% over 2005 level. हम 2025 में, हमने 2015 में वादा किया था कि दोस्तों हम हमारी जो कार्बन एमिशन है उसे 2005 में जो करते थे उससे 35% कम करेंगे। और आज हम 2025 में, हमारे पास और 5 साल है, और ऑलरेडी हम 2005 में जो करते थे उससे 21% कम किए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अशोक स्तंभ बना हुआ है, ये गवर्नमेंट के स्टेटमेंट है। कैसे किया? कुछ भी बोलता है, हो ही नहीं सकता। 21% 2005 से कम देखता है, बट नहीं, आगे का स्टेटमेंट। क्योंकि इंडिया के पास स्कोप था करने का। हमारी जो सोलार पावर की कैपेसिटी 2.63 गीगावाट था 2014 में, वो 2020 तक ही 36 गीगावाट हो गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा स्कोप था कि भौगोलिक दृष्टि से, जियोग्राफिकली वी आर सो वेल प्लेस्ड that we can use solar energy like anything. But this statement दोनों तरफ से, अगर हम इस एंगल से देखते हैं कि वाओ, from 2.63 gigawatt in 2014 to 36 gigawatt in 2020, great, mind blowing, good. दूसरा एंगल, जब पूरा विश्व कार्बन एमिशन को कम करने के लिए लड़ रहा था, जब क्योटो प्रोटोकॉल लागू हो चुका था, क्योटो प्रोटोकॉल 2012 में खत्म हो गया, तो हम क्या सो रहे थे भाई कि 2014 तक हम सिर्फ 2.63 गीगावाट क्या कर रहे थे 2014 तक। तो क्या होता है, आज इंडिया फंटास्टिक परफॉर्म कर रहा है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि 2014 के पहले हमने परफॉर्म ही नहीं किया। तो वो जो बैकलॉग है वो आज हम क्लियर कर रहे हैं, तो विश्व पटल पे दिख रहा है, अरे वाह वाह कितना अच्छा कर रहा है। बट आज इंडिया जैसे कंट्री के लिए आज ये 36 बढ़ के 72 हुआ है, तो फैंटास्टिक। 2014 से 2025 9 साल 2.63 gigawatt to 72 gigawatt is a fantastic, mind blowing. But again the question comes कि 2014 में 2.63 gigawatt क्यों, इतना कम क्यों? And secondly, now India is going for a revised target. हमने बोला था कि 2025 तक 30 तक हम 2005 में जितना करते थे उससे 35% कम करेंगे। We have already achieved 21%. So why not extend our own standard mark? So now we are talking of reducing carbon emission by 48% by 2005 level as compared to by 2030. And we are also stating, planning, no, not 40%, 65% of the power, we will take it to the renewable source. And renewable energy target we are making now is 450 gigawatt. Because what we are already achieving, ये हमारे क्रिकेट में होता ना कि भैया हर ओवर में 8 रन करके बनाना है, पर जब हमारे बल्लेबाज 8 रन अचीव कर रहे हैं तो कोच या टीम मैनेजमेंट बोलता है ठीक है 10 ओवर हो गया ना, 8 रन, आगे के 10 ओवर में 15 रन बनाना है। टारगेट बहुत ज्यादा है टोटल स्कोर को ज्यादा करने के लिए। सेम अप्लाइज है। नाउ इफ यू सी द परफॉर्मेंस 2023 तक का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप देखिए ये
अपने देशों का परफॉर्मेंस है कि जो कमिटमेंट यू हैव मेड इन पेरिस एग्रीमेंट, हाउ यू गाइज आर परफॉर्मिंग। उसमें पहले 3 स्थान खाली है। क्यों खाली है भाई? क्योंकि वो 3 स्थान में वो लोग आएंगे जिनकी एफर्ट इतनी लेवल की होगी जो इस ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 के नीचे रोकने में सक्षम होंगे, उस लेवल की मेहनत। अनफॉर्चुनेटली कोई भी देश आज उतनी मेहनत उस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पाया कि इस ग्लोबल राइज को 1.5 पे रोक सके। सो नाउ ऑल आर ट्राइंग कि ये ग्लोबल राइज 2 डिग्री के ऊपर ना जाए। उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया इज नंबर 8, टोटल में 8, एक्चुअल में 5th पे है। सो जितने भी बड़े देश हैं और दोज हु आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स, इसमें इंडिया इज डूइंग रियली गुड। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन you can't see the big names in first 20. Denmark, Sweden, Chile, Morocco, Estonia, Norway, Philippines, Netherlands, Portugal, Finland, ये करते ही क्या है यार? जो कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, इनका टोटल कंट्रीब्यूशन ही क्या है? We want country like US, country like European Union के देश, country like China to feature. Yes, we are doing, but unfortunately they are not there. So India emerging global leader in renewable energy. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है. So today we are 4th globally for total renewable power capacity additions. मीन्स जब से पेरिस एग्रीमेंट आया है तब से जो आपने रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी ऐड किया है उसमें वी आर 4th ग्लोबली। तो अगर हम इतना देखते हैं कि 2014-15 से अभी तक जितना हमने रिन्यूएबल एनर्जी ऐड की है, द अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वी हैव एडेड सिंस 2014 और 15 टिल 2025, वी आर 4th ग्लोबली। फैंटास्टिक। वी आर 4th बिकॉज before that we hardly had anything. So हम बहुत कम में थे. So we have a scope to add on. That's what we are doing. Already achieved is target of 40% installed electric capacity from non-fossil fuel as we promised in Paris Agreement. कि हम हमारे 40% ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को renewable source of energy में ले जाएंगे. We have already achieved in 2024, and we are the 4th largest installed capacity of solar and wind power in the world. So अगर हम लास्ट 10 साल की बात करें, no political comments, nothing. Last 10 years, yes. As far as the environment is concerned, we are at least honoring what we have promised. We don't say, I'm not saying, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम बेहतरीन कर रहे हैं, बट जो बाकी देश है अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो हम अच्छा कर रहे हैं। देखिए भैया, ऐसा है, वर्मा जी के बेटे को 65% मिला, तो 65% कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मुझे लगता वर्मा जी को खुश होना चाहिए क्योंकि यही बेटा कुछ साल पहले तक 20% लाके फेल हो रहा था। और दूसरी बात, आजू बाजू में शर्मा जी का बेटा, दुबे जी का बेटा, देशपांडे साहब का बेटा, चटर्जी साहब का बेटा, अरे ये सब तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो सब 40-45 वाले हैं। यहाँ पे वर्मा जी का बेटा ले गया ना 65, तो बजाओ ताली वर्मा जी के बेटे के नाम से। ये यथार्थ है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलीज स्टेटमेंट्स है, मेरे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया एट द 20th
सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज COP26 में हमने ये टारगेट घोषित किया कि हम नेट जीरो मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी हम 2070 तक अचीव करेंगे। बड़ा स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली बड़ा है। 2070 तक तो ना मैं रहूंगा ना शायद आप लोग, पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। जो स्टेटमेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट है, वो कहाँ रहेगी, कौन गवर्नमेंट रहेगा पता नहीं, बट कम से कम एक टारगेट सेट हुआ है, उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ किए हैं, कुछ अचीव करना है। अब यहां पे हमारा आज का एयर एनवायरनमेंट पे हमारा चर्चा को हम विराम देते हैं और इसके बाद हम वाटर एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। मैं एयर एनवायरनमेंट को थोड़ा डिटेल में रखा हूं और मैं आपसे बताऊं कि कल मेरा एक और सेशन मैडम ने दिया है सेम टाइम, उस पे हम चर्चा करेंगे बेसिकली कि व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन भी रहेगा, कि व्हाट आर द इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग फॉर अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी, जो आपके सामने दिख रहा है, फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, या फिर ऑनरिंग द प्रोमिसेस व्हिच वी हैव मेड इन पेरिस एग्रीमेंट। फिर से 2 मिनट का एक ब्रेक। आप तक पहुंच पा रहा हूं, आपको समझ रहा है? और अनम्यूट करें और बताइए। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा कि Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Very Yes, sir. Yes, sir. आई बिलीव यहाँ पे ये शायद ऑल ओवर इंडिया का से लोग हैं शायद, कि ओनली महाराष्ट्र से हैं? All over India, sir. All over India. All over India. वेस्ट बंगाल से हैं क्या कोई? Yes, sir. Yes, sir. है सर अच्छी सर। ओके Yes, ग्रेट। क्या होता है, जैसे लेक्चर के पहले एक सज्जन ने बोला मराठी में, वो क्या होता ना, हम कहीं भी रहे, मेरी तो कर्म भूमि नागपुर है और मैं बहुत खुशनसीब हूं, बेहतर खुशनसीब हूं कि मैं महाराष्ट्र में हूं। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं महाराष्ट्र में हूं, मगर फिर भी जहां भी जन्मभूमि का कोई दिखता है तो एक बार थोड़ा सा दिल हिलता है कि अरे अरे ये तो अपने उधर के हैं, तो वो थोड़ा सा लीवे आ जाता है। कुछ बंगाली सरनेम्स दिखे थे इसलिए मैंने पूछा, तो जस्ट टू नो कि ये अच्छा, जो वेस्ट बंगाल में इसलिए पूछ रहा हूं कि हिंदी समझ में आ रही है? है sir. Yes, है sir. सर, कोनो असुविधा नहीं। Okay. কোনো Are অসুবিধা নেই। those who are from southern part, are you guys able to understand? Because what is coming on screen is in English, but I'm trying to make it Hindi-English mix. So if somebody from the south, so are you guys able to understand? Anybody from south? Yes, sir. So you are able to understand if you are from south? यस सर। Okay. We'll have an interactive session for last 10 minutes where we can answer the questions. So now let's go to the water environment, the status of rivers and lakes, some photographs जो बिल्कुल आपको अच्छे नहीं लगेंगे। ये हमारी गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, बट कोशिश करने से काफी कुछ होता है। जो हमने कुंभ में देखा, जो फिगर हमारे न्यूज वाले बोल रहे हैं, अगर उसका आधा भी कर दिया जाए, वट एवर फिगर दे आर क्लेमिंग, मेरे को तो व्हेन आई सॉ कुंभ एंड आई वॉच टीवी, तो आई ट्रस्टेड व्हाट माय all the media people are saying, especially for Aaj Tak, ABP News,
नवभारत एक है, शशांक सिन्हा आते हैं उसमें। बट ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना हमारे मीडिया को सीरियसली लेना है, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। आपके पास डेटा नहीं है और आप कह रहे हो कि आपने प्लेन गिराया, ये हुआ वो हुआ। आप मीडिया के हो, आप देश के आधार स्तंभ हो, आप पे लोग विश्वास कर रहे हैं और आप क्या बोल रहे हो यार। सो द रेफरेंस इज कि कुंभ में इतने करोड़ लोग गए हैं, मगर अगर उसका आधा भी कर दे, हाफ ऑफ दैट, स्टिल आई बिलीव इट्स अ बिग अचीवमेंट। A river which is considered as one of the most polluted river of India, जो सबसे प्रदूषित नदियों में माना जाता है, उस पे आप कुंभ का आयोजन कर रहे हो जिसमें करोड़ों लोग डुबकियां लगा रहे हैं और पानी साफ है, लोग कह रहे हैं। भले उतने लोग जो मीडिया दिखा रहा नहीं होगा, उसका आधा भी होगा, स्टिल इट इज अचीवमेंट। तो इट शोज कि अगर प्रशासन चाहे तो काफी कुछ कर सकते हैं। आपके सामने गंगा नदी, यमुना नदी, एंड ये हमारे नागपुर की नाग रिवर, जिससे नागपुर शहर को नाम मिला है, पीली रिवर, सम लेक्स, डल लेक, हुसैन सागर लेक, फतेह सागर लेक, फुटाला लेक, गांधी सागर लेक। सो इन अ नटशेल इट्स अ होपलेस कंडीशन। सारे नदी, सारे तालाब को हमने प्रदूषित कर दिया। ये हमारे नागपुर के और 2 लेक्स हैं, सारे नदी। We have polluted all the water bodies, surface water bodies, whether it's a lake or it's a river or whatever it is. जब मैं when I was in college, today I am 53 years old. When I was in college, since then I'm reading Ganga Action Plan. Crore has been invested. Still Ganga River Ganges remains polluted. Why? The very simple reason, guys, try to understand. Today we have Pollution Control Board and we have State Pollution Control Boards. They are doing good job in restricting the polluted water discharge by industries. आज अगर कोई इंडस्ट्री है, औद्योगिक इकाई है, उसके ऊपर नजर है कि अगर वो प्रदूषित पानी बाहर फेंकेगा तो पकड़ेंगे। 1-2 वार्निंग के बाद इंडस्ट्री में ताला भी लग सकता है। इतना पावर है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हाथ में। सो इंडस्ट्री वाले भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, लगाते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का है कि भाई हमको 1 बूंद पानी भी बाहर नहीं फेंकेंगे। आप अक्सर देखोगे कि फॉर गेटिंग परमिशन, फॉर एग्जांपल एक ब्रिवरी है जो कोई एक शहर में आ रहा है, समझ लीजिए कोई एक शहर में आ रहा है जो जिसके आसपास में प्रदूषण ज्यादा है, और वही ब्रिवरी एक दूसरे शहर में आ रहा है जहां प्रदूषण कम है आसपास में। सो दोनों के डिस्चार्ज नॉर्म्स अलग हो जाएंगे। जो प्रदूषित शहर में है उनको शायद प्रशासन बोलेगा कि आप जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे जाइए, कि आप इंडस्ट्री लाइए, पर आप 1 बूंद पानी भी बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। आजू बाजू में पूरे प्रदूषित नदियां हैं। अब हम आपके इंडस्ट्री के प्रदूषण को झेल नहीं सकते। तो इंडस्ट्री बोलेगा हम तो ट्रीट कर रहे हैं, ये अब ठीक है, बहुत कर रहे हैं, थैंक यू, करके रीयूज करिए पानी को, बाहर नहीं फेंक सकते। तो परमिशन मिला ZLD के साथ, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, तो उनका ट्रीटमेंट प्लांट लंबा हो जाएगा। वहीं अगर कोई हिमाचल में आ रहा है या कोई अच्छी जगह में आ रहा है जहां पे प्रदूषण थोड़ा कम है समझो, तो उनको शायद डिस्चार्ज करने का अनुमति दे दिया जाए कि ये पैरामीटर लाइए, ट्रीटमेंट करके फिर डिस्चार्ज करिए। तो आज इंडस्ट्रीज के ऊपर पे नजर तगड़ी है, मगर जो सीवेज है उसका क्या करेंगे?
ये एक यथार्थ है और भयानक यथार्थ है कि हमारे देश के कोई भी शहर जितना सीवेज जनरेट कर रहा है उतना ट्रीट नहीं कर रहा है। और मैं गर्वित हूं, मैं नागपुर में हूं, क्योंकि नागपुर इसमें एक मिसाल है। ये क्या हो गया? Just a minute, something went wrong. Sir, can you please share your screen again? Okay, I'll do that. Resume. It has come. Is it visible? Yeah, it is visible. Yes, sir. So now I am happy that I am living in a city called Nagpur in Maharashtra, and the figures are we generate around 600 MLD, million liters per day of sewage, out of which there are two big sewage treatment plants where we are treating 200 and 130, that is 330 MLD, and rest there are small sewage treatment plant across the city from varying from 5 MLD to 80 MLD. तो करीब करीब 650 में से 550 MLD सीवेज हम ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कैसा आदमी है, 650 जनरेट कर रहा है सीवेज, 550 ट्रीट कर रहा है, और 100 MLD मिलियन लीटर्स, 100 मिलियन लीटर्स सीवेज अनट्रीटेड हम बहा रहे हैं नदी में, नाग नदी में। फिर भी ये बंदा खुश हो रहा है, क्योंकि फिर से वही दुबे जी, शर्मा जी, चौबे जी, अरे हम तो इतना ट्रीट कर रहे हैं भाई, बाकी दो शहरों में देखिए 50% सीवेज भी ट्रीट नहीं हो रहा है, और जहां जहां गंगा मैया बह रही है सारा सीवेज वहीं जा रहा है। और नागपुर ने क्या किया है, ये हमारे माननीय नितिन जी गडकरी जी का दूरदर्शिता है कि उन्होंने यहां के जो थर्मल पावर प्लांट है उनको बोला गया है कि ये सीवेज ट्रीटेड सीवेज आप रीयूज करिए, और इसके लिए आप नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे दीजिए। अब देखिए छोटा सा सोच कितना बड़ा गेम चेंजर है। ये सीवेज ट्रीट करके नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहा दे रही थी ट्रीटेड सीवेज, अब बहा सकते हो आप। बीओडी is around 10 milligram per liter, COD 50 milligram per liter, TSL less than 30 milligram per liter, आप नदी में बहा रहे हो, allowed है, good. But now Nagpur is surrounded with 2-3 big thermal power units. Now they made their own STP 130 MLD, and treatment के बाद पाइपलाइन से वो ट्रीटेड सीवेज को ले जा रहे हैं और रीयूज कर रहे हैं। सो आप इमेजिन करिए एवरी डे अगर 100 MLD ट्रीटेड सीवेज थर्मल पावर प्लांट यूज कर रहे हैं, अर्थात इतना ही ज्यादा 100 MLD सीवेज, 100 MLD पानी, फ्रेश वाटर वो कम यूज कर रहे हैं। दैट्स एन अचीवमेंट। अगर वो ये नहीं करते तो रोज थर्मल पावर प्लांट फ्रेश वाटर 100 MLD उठाते, बट अब वो उसको ट्रीटेड सीवेज को यूज कर रहे हैं, और ऊपर से नागपुर महानगर पालिका को पैसे भी मिल रहे हैं। तो रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज इज द न्यू थिंग इन, एब्सोल्युटली न्यू थिंग इन, जो हमारे देश में पूरी तरह से भी फैला नहीं है। अब यही सीवेज है, सीवेज मतलब हमारे घरों से निकलने वाला मलमूत्र, सॉरी टू से बट हिंदी रूपांतर यही है, हमारे किचन, टॉयलेट, बाथरूम से निकलने वाला पानी। ये जो हमारे नदियों को प्रदूषित कर रहा है, इस पे कोई रोक नहीं है। सम बीच के फोटोग्राफ्स, अगला फोटोग्राफ देखिए, सम फैक्ट्स आपके सामने। 2.2 बिलियन पीपल लिव विदाउट एक्सेस ऑफ सेफ वाटर ग्लोबली। 2.2 बिलियन लोग सेफ वाटर के बिना आज पूरे विश्व में रह रहे हैं।
2.3 बिलियन लिव इन वाटर स्ट्रेस कंट्रीज, वो देश जहां पे पानी कम है। आप जानते हैं कि पहला शहर विश्व का जिसमें सरकार ने हाथ ऊपर उठा दिए हैं वो केप टाउन, साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगर हमारे देश की बात करें, जो लोग थोड़े से न्यूज पढ़ रहे हैं, ये वो देखते हैं, तो प्रिंट मीडिया, अच्छी प्रिंट मीडिया जिसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, बेंगलुरु एंड चेन्नई आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम नाउ। Less than 50% of the domestic wastewater is safely treated in 24 out of 75 countries. और most 75 countries are high income countries. अर्थात वो 75 हाई इनकम कंट्री, मतलब डेवलप्ड देश, 75 सबसे डेवलप्ड देश भी अपने डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मतलब सीवेज का केवल 50% ट्रीट कर रहा है। नहीं, 75 में से केवल 24। 75 वो देश जो डेवलप्ड कंट्री है, उनमें से केवल 24 ही है जो 50% ट्रीट कर रहे हैं बस। बाकी तो 50 से भी कम कर रहे हैं, और वो डेवलप्ड कंट्रीज है। अर्थ समझिए यूएन वाटर का है, 75 सबसे डेवलप्ड कंट्रीज, उसके भी केवल 24 ही ऐसे हैं जो 50% ही सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं, बाकी उससे कम कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूं नागपुर में रह के। हम 650 में से 550 ट्रीट कर रहे हैं बाबा, शायद ही ना इंडिया में और कोई शहर कर रहा है। 3 billion people lack a basic hand washing facility with soap and water at home in 2017. ये फैक्ट से हम गुजर रहे हैं। ये फोटोग्राफ आप देखिए, जिस भगवान जी को हम इतने दिनों तक पूजते हैं, उनका विसर्जन हम कैसे करते हैं। अब मैंने पहले ही पूछा, हमारे जो बंगाली दोस्त लोग यहाँ हैं वो ये चीज मानेंगे कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बप्पा आते हैं, 11 दिन विराजमान रहते हैं, फिर चले जाते हैं। पर हमारे बंगाल में, बंगालीज में दुर्गा देवी आती है, हमारा मेन फेस्टिवल है। जरा दूसरे एंगल से मैं पेश कर रहा हूं इसको कि दुर्गा देवी अकेले नहीं आती है, दुर्गा देवी सहपरिवार आती है। अब पहले जमाने में दुर्गा देवी की मूर्ति मिट्टी की बनती थी और एक असुर रहता था, असुर महिषासुर मर्दिनी नाम है, महिषासुर का वध करी थी दुर्गा देवी ने। सो जो असुर है वो एक असुर दुबला पतला रहेगा, उसको दुर्गा देवी हत्या करेगी और छोटे छोटे उनके बच्चे साथ में, ये कॉन्सेप्ट। और सारे मिट्टी की मूर्तियां, इसके बाद विसर्जन होता है। वो जमाना कुछ अलग था जब गंगा में इधर से हमारे जो इंडियन वेस्ट बंगाल की जो मूर्तियां गंगा में विसर्जन को जाती थी, उधर से बांग्लादेश में जो हिंदू हैं तब वो खुश थे, तो वो विसर्जन के लिए आते थे। पर आज क्या हो गया है, आज एक कंपटीशन हो गया है कि किसकी दुर्गा देवी की मूर्ति कितनी बड़ी। सो दुर्गा देवी की मूर्ति ह्यूज हो गई है, मिट्टी को पीओपी ने टेक ओवर कर लिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो घुलता नहीं है, पानी में सालों साल पड़े रहता है। और जो असुर, वो असुर को तो हर साल मरना ही है। पर आज के असुर को देखिए, कोई बंगाली दुर्गा मंडप में जाके, असुर एकदम जॉन अब्राहम जैसा बॉडी बना के आता है, इतना मोटा असुर, तगड़ा। अबे मरना ही है तेरे को हर बार, तो क्या इतना बड़ा बना के लाते हो। सिर्फ ये नहीं, अब दुर्गा जी की वाहन जो सिंह है वो भी इतना बड़ा हो गया है, शेर। और असुर का भैंस, अरे बाप रे इतना बड़ा। अब ये बड़ा बड़ा जो हो रहा है ये सब पानी में जाएगा। जो बेटे और जैसे हमारे माननीय गणेश जी, कार्तिक जी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, इनकी मूर्तियां भी बड़ी हो गई, इनके वाहन की मूर्तियां बड़ी हो गई। सो एक दुर्गा पूजा पंडाल से करीब 10 मूर्तियों का विसर्जन
पानी में होगा। ये आस्था की बात है। हम तो विसर्जन करेंगे, आगे सरकार देखेगी, फिर हम ही बोलेंगे चाय में चुस्की लेते हुए, यार ये नदियां हमारी बहुत पोल्यूटेड है यार। जो फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं ये यथार्थ है, दुख की बात है। और हम बस इतना ही बोल सकते हैं, देख रहा है विनोद क्या हो रहा है, बस करना धरना कुछ है नहीं, देख रहा है विनोद कैसे लोग प्रदूषण कर रहे हैं और क्या कर सकते। पंचायत सीरियल का फोटो। सो वाटर पोल्यूशन के कारण डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इन वाटर बॉडीज, discharge of untreated or partially treated industrial water, idle immersion, garbage dumping, कचरा फेंको नदी में और क्या, नदी तालाब में, एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो यूज होता है पेस्टिसाइड, जो कुछ होता है सब पानी में गए, अर्बन रन ऑफ इंक्लूडिंग स्टॉर्म वाटर, बारिश का पानी जो शहरों में अर्बन कचरा वचरा सब लेके, एंड मल्टीपल यूज ऑफ वाटर बॉडीज। ये कारण है कि आज हमारे जितने भी जल स्रोत है, सरफेस वाटर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की तो हमने अलग बैंड बजाई हुई है। ग्राउंड वाटर टेबल दिन पर दिन नीचे जाते जा रहा है, जिसका द मेन रीजन इज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर गेटिंग जनरेटेड, द एक्सट्रैक्शन इज मच मोर देन दैट। व्हाई इट इज सो? जस्ट पुट योर थॉट्स टुगेदर। पहले एक छोटा घर होता था, देयर इज स्मॉल हाउस, एंड इन स्मॉल हाउस देयर यूज्ड टू बी 10 पीपल स्टेइंग देयर, एंड दे will need about 120 liters of water per day. So 10 into 120, 1200 liters per day requirement of that house. उसके लिए एक छोटा सा कुआं काफी था। अब उस घर को तोड़ दिया गया, demolished. There we are putting up a skyscraper of say 10 floors. Each floor there are 4 flats. Each flat there are 5 guys staying. So per floor 5 into 4, 20 people. 10 floor, 200 people. So there were 10 people, now there are 200 people. So 200 into say 100 or 120. Now I need 20,000 liters, 2 lakh liters. So वो कुआं काम नहीं करेगा, we'll go for a bore. And after 3 months, the next house will be demolished and there will be another skyscraper. They will bore it deep. So what is water getting generated and what we are extracting is much more. So the groundwater table is going deep, deep, deep. So this is the fact that we have really messed up with our groundwater as well as our surface water. Now, the sustainable development. What is sustainable development? Sustainable development in one-liner is very simple, that there are in the 2030 Agenda of Sustainable Development adopted by United Nations, they say that they recognize that the ending, there are a lot of things, not only environment. I'll show you the sustainable goals. But basic thing is that you utilize the resources जितना आपको जरूरत है, बाकी आने वाले प्रजन्म के लिए रख दीजिए. And there are 17 sustainable goals which have been defined. No poverty, no hunger, good health, quality education, gender equality, clean water and sanitation. इसमें से काफी चीजें एनवायरनमेंट के लिए आती है, like 6th one, water and sanitation. Renewable energy, 7th one. Sustainable cities and communities, आ सकता है. Climate action is 13th, is the main from the environment. Life below water, life on land. So इसमें लोगों को बहुत confusion होता है कि sustainable goal means only environment. No, there are only 3-4 are related to environment. All are interlinked, but directly they are not meaning for the environment. But these are the sustainable goals, 17 goals, which was identified by United Nations.
सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई हम क्या कर सकते हैं? समझ गया भैया, एयर पोल्यूशन समझ गया, ग्लोबल वार्मिंग समझ गया, मैं क्या करूं? मैं एज ए इंडिपेंडेंट person, I am alone, I am independent person, what can I do? Tell me. So what common man can do in a nutshell? Believe in 7 R's: recycle, refuse, reduce, reuse, repair, rethink, recover. Means recycle anything जो आपके घर में आप यूज कर रहे हैं उसको आप रिसाइकल करिए। अब हमारे घर में पार्टी होती है, वी गेट अ 2 लीटर बॉटल पेप्सी, कोका, पार्टी खत्म, बॉटल डस्टबिन में। बट नाउ गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड अ रिसाइकल मैकेनिज्म कि देयर आर वो जगह हैं हर शहर में बने हुए जहां आप ले जाके प्लास्टिक बॉटल को रीयूज करने दे सकते हो। पैसे बहुत कम मिलेंगे पर वो रिसाइकल में जाएगा। रिफ्यूज, हमारे में हम टोटली इस चीज के अंदर आ गए हैं कि आज अगर मेरा मोबाइल इफ इट इज 2 years old और मेरा कलीग कोई नया मोबाइल लाता है तो मुझे लगता है यार मेरे को भी वो लेना पड़ेगा यार, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे यार कि मैं ऐसा ये मोबाइल लेके मैं काम कर रहा हूं। ये जो हमारे अंदर की जो ये आग है, ले दिस शुड स्टॉप समवेयर। मैं भी ऐसे ही था जब मैं एनवायरनमेंट के बारे में सी आई गॉट डिग्रीज इन एनवायरनमेंट 5-6 डिग्रीज। मैं भी लैपटॉप लगा के बम जाता था काम पे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आई यूज्ड टू डिजाइन, आई यूज्ड टू गेट गुड सैलरी एंड आई एम ए हैप्पी गाय। फाइन, I'm not an environment concerned person, no, never. But in 2010 I realized, I'll tell 1 minute why I realized. जो लोग यहां बंगाली बैठे हैं वो लोग जानेंगे, इस बात को समझेंगे। हमारे कोलकाता में एक सिंगर है नचिकेता चक्रवर्ती, वो लाइफ ओरिएंटेड गाना गाते हैं, लाइफ से रिलेटेड गाना गाते हैं। सो उन्होंने एक कैरेक्टर, वो बहुत कैरेक्टर्स बनाते हैं गाने में, तो उनका एक कैरेक्टर है अनिर्बान, जो बहुत सारे डिग्रियां लेने के बाद समाज को बदलने के लिए निकल पड़ा, लौट के नहीं आया। तो जब मैं कॉलेज में था मैं बहुत नचिकेता को सुनता था, तो मुझे लगा कि मैं सोसाइटी को क्या दे रहा हूं, कुछ नहीं दे रहा हूं यार। मैं अनिर्बान तो नहीं बन सकता हूं तो बहुत बड़ी बात है, बट एनवायरनमेंट का नॉलेज मुझे बाकियों से ज्यादा है, तभी तो मैं जॉब कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं। सो व्हाई नॉट आई गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी ऑन एनवायरनमेंट फ्रंट। एंड देन आई मेड अ स्मॉल ग्रुप इन 2010। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, यही चीज लोगों को जाके बार बार बताने के लिए, लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए वी मेड अ ग्रुप, ग्रीन विजिल फाउंडेशन। एंड 2010 से मैं बदला कि कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए, कुछ अपने शहर के लिए करना चाहिए। सब बदल सकते हैं। रिड्यूस, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उससे कम क्यों नहीं करते हम? कितना एक्सेस, आप देखिए, आप कोई भी शादी में चले जाइए, गो टू एनी मैरिज सेलिब्रेशन, यू विल फाइंड पीपल आर डंपिंग देयर प्लेट्स विद फूड and he knows when he's taking so much of food he cannot eat, फिर भी वो डंप कर रहा है, तो बाद में वेस्ट कर रहा है। वो बात अलग है कि आप लड़की के पापा के बारे में सोचिए जिनका पैसा लगा, वो सब तो ठीक है, बट मैं ये बोलता हूं कि what a resource you are wasting guys. Any food material फील्ड से आपके प्लेट में आने के लिए उसने मेरे देश का कितना रिसोर्स यूज कर लिया है। उसमें पानी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें क्या नहीं है, एंड वी आर वेस्टिंग इट। रीयूज हम करना ही नहीं चाहते। रिपेयर, व्हाई शुड रिपेयर मैन? यार क्या है यार, 5,000 के लिए रिपेयर, क्या बोलेंगे बाजू के दुबे जी, शर्मा जी, फटा वाला फोन लेके आया, फटा वाला जैकेट, जीन्स फट गया, रिपेयर करके लाया।
इस सोच से बाहर आना है। ये आम आदमी कर सकता है। प्रैक्टिस लो कार्बन लाइफस्टाइल। कितने लोग हैं जो आज कारपूल करते हैं? मैं भी 2008 में बुलेट पे है, स्टाइल में जाएंगे यार, स्टाइल है, अपने पैसे अपने पास। सोच बदल, आज बदल गया है। आज कार में आते हैं, कारपूल होता है। मेरे कार में भी 4 लोग हैं, मैं दूसरे के कार में बैठ के आता हूं। हमारा ऑफिस है, मेरा घर है, रूट में लोग हैं। ठीक है ना, थोड़ा रुक जाएंगे 2 मिनट यार, साथ में आएंगे, दोस्ती भी बढ़ेगी, मेरा खुद का पैसा भी बचेगा, और शायद मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूं। रिड्यूस वाटर फुटप्रिंट, ये तो सभी कर सकते हैं दोस्त। कार्बन स्टाइल में हम देखो रूम से बाहर निकल जाते हैं, लाइट्स फैन कुछ नहीं ऑफ करते। आज मैं आपको ये लेक्चर ले रहा हूं, सिर्फ एक पंखा चल रहा है, ज्यादा गर्मी है नहीं, एसी ऑफ है। गर्मी बहुत होगी, नागपुर में 48 पे जाएगी, एसी ऑन कर देंगे। रिड्यूस, टैप लीक है, बह रहा है, सरकारी नल लीक है, जान देना मेरे को क्या करना। अरे बता तो सही भाई, लीक हो रहा है। हमारे शहर में 24/7 कुछ कुछ जगहों में वाटर सप्लाई है, तो लोग आज पूरा पानी भर के रखते हैं कि कल नहीं आया, तो जब कल आ गया ये पानी फेंक के फिर से पानी भरते हैं। हर जगह पे सोच का प्रॉब्लम है यार। सस्टेनेबल ऑप्शंस, वो चीज यूज कर। बताइए, सरकार इतने दिनों से बोल रही है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, बट आस्क योरसेल्फ, आई एम श्योर आज भी 75% of the people listening to this talk, they are using plastic bags. कभी ना कभी they are using plastic much, शाम को जब घूमने निकलते हैं। ये आम आदमी है यार, क्या करना है? एक थैला रखना है और एक लोहे का चम्मच, एक स्टील का चम्मच रखना है। चलो पानी का बोतल कैरी करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ तो कर सकते हैं एज ए कॉमन मैन। सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बोलने की बात है। आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अगर कोई पेड़ कट रहा है, खड़े होकर पूछे भाई क्यों काट रहा है? आज हमारे देश में अबाउट 80% of the trees which are being felled are illegal because no one asked them. In Maharashtra, if you are cutting a tree, you will be fined 50,000 rupees if it is proven that he is cutting it without permission. Hats off to the government led by Honorable Uddhav Ji Thackeray. He made some environmental laws so stringent. कल हम इसके बारे में बात करेंगे। Adopt renewable energy sources. इसमें एक बात बोलेंगे, आप में से बहुत लोगों को लगता है वाह मैं तो ईवी की गाड़ी चला रहा हूं। तो जनाब, आप ईवी की गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो ईवी की गाड़ी चार्जिंग कहां कर रहे हैं? सोलार पे? नहीं, मैं तो अपने घर के उसमें करता हूं ना। सो जनाब, आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने टेल पाइप पोल्यूशन को ट्रांसफर कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट में, जो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है। EV vehicle, if not charged by solar or any renewable energy source, has no contribution to the environment. You are only transferring your tailpipe pollution to the thermal power plant. And then educate. मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज इतने बुद्धिजीवियों से बात कर रहा हूं। आप, जैसा मैंने बोला कि आज के द्रोणाचार्य हैं, आप लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे, तब जाके ये मैग्नीफाई होगा, ये एम्पलीफाई होगा। वो तो सब ठीक है भाई, खुद क्या करते हो पर्यावरण संरक्षण के लिए? ये प्रश्न आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैं यहां एक रूम में बैठ के सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं या मैं कुछ करता हूं? मैं बताना चाहूंगा कि 2009 तक मैंने कुछ विशेष नहीं किया, पर पिछले 15 साल से क्या कर रहा हूं जो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक दिखाना चाहता हूं, पूर्णिमा दिवस कैंपेन। ये कैंपेन नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर हम करते हैं। एवरी पूर्णिमा के दिन
एक दिन आगे पीछे, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिलेक्ट्स अ स्क्वायर इन नागपुर एंड दे डिम द स्ट्रीट लाइट, और वहां पे हम जाके हर दुकान में, हर घरों में लोगों को क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बताते हैं, नीड ऑफ पावर कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं, जो मैं आज बता रहा हूं इसके बारे में बताते हैं, और सबसे अनुरोध करते हैं कि 1 घंटा 8 से 9 जो अनावश्यक लाइट है, द लाइट जो आपको जरूरत नहीं है, वो लाइट आप कृपया बंद करें। आप बैठे अंधेरे में नहीं बैठना है, पर 5 लाइटें जला के बैठे हो जनाब, तो 3 बंद कर दो। 2014 से ये कैंपेन हमने शुरू किया। हमारे उस समय जो मेयर थे नागपुर के, माननीय अनिल सोले जी, उनके साथ मिलकर, उनके मार्गदर्शन में, एंड यू नो व्हाट वी अचीव्ड टिल नाउ। दिसंबर 2025 तक का डेटा नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पब्लिश किया है। वी हैव सेव्ड 2,53,201 units of electricity. Means for generating 1 unit of electricity, you generate 1 kg of carbon, you emit. Means नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2014 से लेकर 2025 तक 2,50,201 kgs ऑफ कार्बन एमिशन को रोका है। गौर करें, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में टेबल हुआ, 2016 में इंडिया ने साइन किया, नागपुर 2014 से ये कर रहा है, और अभी तक 2,53,201 kgs ऑफ कार्बन एमिशन को रोका है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, और सबसे खुशी की बात है कि शिक्षक दिवस के दिन माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने इस कैंपेन का उल्लेख किया, इस कैंपेन की तारीफ करी। इसके सिवा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर बचाया गया, आपके समक्ष है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल बचाया गया। महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हर घर में बप्पा विराजते हैं, और मैक्सिमम मूर्तियां पीओपी की होती थी, और सारी मूर्तियां तालाब में जाके विसर्जित होता था, और गणपति विसर्जन के बाद 10 दिन, क्योंकि दूसरे दिन से ही गणपति विसर्जन होता है, और तालाब में मछलियां मरती थी, तालाब गंदे होते थे। तो हमने नागपुर महानगर पालिका को यह कॉन्सेप्ट दिया आर्टिफिशियल टैंक का। अब हर तालाब के बाजू में आर्टिफिशियल टैंक लगने लगे। देखिए मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, हमारे पूरे वॉलंटियर्स खड़े हैं। ये हम 2010 से कर रहे हैं, और जब एक आम आदमी रास्ते पे उतर के काम करता है, तो ये देखिए हमारे माननीय उस समय के कलेक्टर साहब आए हुए हैं, आम जनता विसर्जन कर रहे हैं आर्टिफिशियल टैंक में। हमारे नागपुर के पर्यावरण के प्रति समर्पित हमारे मेयर तत्कालीन माननीय दयाशंकर तिवारी जी हौसला बढ़ाते हुए, ये जो एक और दिख रहे हैं आपको जनाब, ये अभिजीत बांगर जी हैं, ये आईएएस ऑफिसर है, मौजूदा आज वो मुंबई के एडिशनल कमिश्नर हैं। मगर मैं एक पर्यावरणविद होने के नाते भी उनको सलाम करता हूं कि उनका पर्यावरण के प्रति समर्पण मैंने किसी आईएएस ऑफिसर में आज तक नहीं देखा। उनके पीछे राम जोशी जी हैं जो एडिशनल कमिश्नर थे। ये देखिए नागपुर में ये हो रहा है, मतलब पॉलिटिशियंस, आईएएस के लोग, आम जनता सब मिलके हमने लेक को बचाने की मुहिम चालू करी थी 2010 में, और आज नागपुर शहर में सारे लेक्स को बैरिकेड कर दिया जाता है। विसर्जन के समय, गणपति विसर्जन के समय हम निर्माल्य कलेक्ट करते हैं, और पीओपी की मूर्तियों का विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में करते हैं। ये इतना ज्यादा चला नागपुर में कि आज नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारे तालाबों को बैरिकेड कर देता है, और पूरे मूर्तियों का, मिट्टी का हो या पीओपी का हो, पूरे मूर्तियों का विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में होता है। सेम अप्लाइज टू देवी विसर्जन। और ये फैक्ट्स हमने अचीव किया 2024, मतलब पिछले साल गणपति विसर्जन में 1,65,200 idols were immersed in artificial tank erected across Nagpur city. Hats off to Nagpur Municipal Corporation. They erected 316 artificial tanks where 1,65,200 मूर्तियों का विसर्जन हुआ, और एक भी मूर्ति का विसर्जन तालाब में नहीं हुआ।
सुनने में बड़ा अचरज लगता है। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1.65 lakhs idols were immersed across city in eco-friendly manner। और चाहे वो पीओपी का हो या मिट्टी का हो, सारे मूर्तियों का विसर्जन तालाब में होगा। और बड़े मूर्तियों के लिए आप फोटो में देख सकते हैं, बप्पा विराजमान है। बड़े मूर्तियों के लिए बहुत बड़ा आर्टिफिशियल टैंक बनाया गया सिविल स्ट्रक्चर में, वहां बड़े मूर्तियों का विसर्जन हुआ। ये हमारा दूसरा हम ये कैंपेन करते हैं। हम वाटर मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे शहर में जो लेक्स हैं उसके वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करते हैं, नागपुर महानगर पालिका को उसका रिपोर्ट देते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में हम काफी इस पे भाग लेते हैं, पूरे शहर में कई रैलीज हमने निकाले हैं, काफी कुछ हमने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए किया है। ये हमारे ग्रीन विजिल फाउंडेशन की टीम लीड है, मेरी स्टूडेंट है, जिन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण के नागपुर की लीडर चुना गया था। एंड ये सुरभि जायसवाल हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसको पढ़ाया है और इनके बनने में मेरा योगदान है थोड़ा बहुत। इन्होंने एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में किया है, बाद में इन्होंने एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में किया बिट्स पिलानी से। आईपीएल के तहत ही सारे शहरों के टीम बनती है। टीम का नाम नागपुर टाइगर्स है और इस कंपटीशन का नाम इंडियन स्वच्छता लीग है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है कोई, ये एक कंपटीशन है। आपके शहर को साफ करना है, आपके शहर को ये करना है। तो 2023-24 के लिए नागपुर ने सुरभि जायसवाल को पूरे नागपुर को लीड करने के लिए उन्होंने कैप्टन चुना था। ये हमारा एक और कंट्रीब्यूशन। एक और कंट्रीब्यूशन हम करते जो आप भी आपके कॉलेज के आसपास कर सकते हैं कि लोग पेड़ों में कीले ठोक देते हैं। तो जो बॉटनी के लोग हैं आज सुन रहे हैं, वो मेरे से ज्यादा जानते हैं कि पेड़ किस तरह से जाइलम फ्लोएम पंक्चर होता है, कितना कुछ होता है। तो इसके लिए नेल रिमूवल कैंपेन हम क्या करते हैं, जो इस्तेहार लगा उसको निकाल लेते हैं और ये ले जाके नागपुर महानगर पालिका को देते हैं। इसमें उनका पूरा ब्यौरा रहता है, किसका एडवर्टीजमेंट है, और उस एडवर्टीजमेंट को फिर नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको फोन करके पनिशमेंट देते हैं या फाइन लेते हैं, जो भी करते हैं। और एक चीज आप गौर करिएगा कि हमारे टीम में जितने लड़के काम कर रहे हैं, उतने जोश में, उतने ही फोर्स में हमारे टीम में लड़कियां भी काम कर रही हैं। ये वृक्षारोपण तो सभी करते हैं, तो हम भी करते हैं, ये तो आजकल का फैड है। हम स्ट्रीट प्लेस के जरिए, पथनाट्य के जरिए लोगों तक पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को पहुंचाते हैं। स्कूल्स कॉलेजेस में जाके हम पर्यावरण संरक्षण के लिए बोलते हैं। ड्राइंग कंपटीशन, छोटी मोटी चीजें छोटे बच्चों में पर्यावरण के लिए लाना। स्वच्छ भारत अभियान हमारा सबसे एक मेजर है। हम गीला कचरा, सूखा कचरा, कंपोस्टिंग कैसे करना, इन सब के बारे में लोगों को जाके जागरूक करते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इन स्लम्स, बस्तियों में जाके। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम, मार्केट में हर जगह जाके लोगों से बात करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को मना करना, उनको बैग्स देना। और ये एक बहुत बड़ा मुहिम था कि नागपुर एक डेवलप हो रहा शहर है, बहुत सीमेंट रोड्स बन रहे हैं और नागपुर के 9000 पेड़ चोक हो गए थे। तो जब हमने ये देखा 9000 पेड़ है, तो हमने ये माननीय अभिजीत बांगर जी के समक्ष रखा, जब वो कमिश्नर थे, कि सर इसका कुछ करिए, क्योंकि 9000 पेड़ को डीचोक करना तो हम कैसे करेंगे, हम छोटे लोग हैं, कम लोग हैं। तो अभिजीत बांगर जी ने ये मुहिम उठाई और नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नागपुर के 9000 पेड़ को डीचोक किया। ये आप देख सकते हैं, कुछ अलग अलग जगह के फोटोग्राफ्स हैं। बाकायदा फुटपाथ में उसको सीमेंट निकाल के, गट्टू निकाल के पेड़ों को जीवन दान दिया गया। रीचिंग आउट सिटीजन्स, लोगों तक पहुंचना। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बताना चाहूंगा कि जब 2010 से मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए और आज 2015 है, हम एनजीओ हैं पर हम सेल्फ फंडेड एनजीओ हैं, अर्थात 15 सालों में हमने किसी से भी एक पैसा नहीं लिया है। लोगों को लगता है एनजीओ मतलब पैसे छापने की मशीन है, अनुदान लेंगे, पैसे लेंगे, बहुत कुछ करेंगे, पर हम इसी सोच को बदलना चाहते हैं। आज तक जितने भी बच्चे आप हमारे साथ देख रहे हैं,
सब बिना पैसे लिए एक जुनून की तरह काम कर रहे हैं और हमने आज तक किसी से भी कोई आर्थिक मदद नहीं लिया है। नो कमर्शियल हेल्प। जो हम कमा रहे हैं, जो हम जॉब कर रहे हैं, हमारे ही सैलरी में से थोड़े पैसे देके हम सब ये एनजीओ चला रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हम क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा बताना जरूरी है क्योंकि आज के जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो आके ज्ञान देके चले जाते हैं पर शायद खुद नहीं करते हैं। पर मेरा वैसा नहीं है। मैं भी नहीं करता था सर 2009 तक। 2009 के बाद जब मुझे लगा कुछ करना चाहिए, आई एम सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय नचिकेता चक्रवर्ती एंड हिज कैरेक्टर अनिर्बाण कि हमने ये शुरू किया, हम ये करते क्योंकि हम मानते हैं बदलाव बहुत धीमी आहट से आता है। बदलाव बहुत धीमी आहट से आता है। महसूस करो, एहसास होगी, क्योंकि समय चक्र था रेत में धसा, चल पड़ा वो भी एक नई दिशा में। थैंक यू सो मच इतना समय मेरे को देने के लिए और इतनी देर मेरे को सुनने के लिए। मैं अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में भी आपके बच्चों को थोड़ा इंस्पायर करना है, थोड़ा उनसे पर्यावरण के बारे में बात करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए या मैं यहीं पे दे देता हूं। मेरा नंबर है 9850302670। छपाई नहीं, 9850302670। दिस इज माय नंबर। अगर कभी भी आपको लगे कि पर्यावरण के बारे में कुछ करना है तो मैं हाजिर हूं। थैंक यू सो मच। अगर आपके लिए कोई प्रश्न है तो आई एम हियर टू लिसन द क्वेश्चंस। और अगर आज वक्त ज्यादा हो गया तो कल हम फिर जुड़ेंगे, तो पहले हम क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। आप बताइए जैसा है। हेलो सर। ओवर टू यू मैम। या हेलो सर, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि ओजोन ओजोन लेयर पे क्या इफेक्ट होगा CO2 कम नहीं किया तो? वेरी गुड। देखिए, ओजोन की जो बात है ना, मैं एज ए आपने बताया भी नहीं वो बारे में मैं ज्यादा। बता रहा हूँ। एज ए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मुझे ये लगता है कि ओजोन के लिए जो हम थोड़ा मिथ पे ज्यादा जा रहे हैं, ये बराबर है कि हमारे एसी में, हमारे फ्रिज में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था, उसके लिए ओजोन लेयर में होल हुआ। एक जैसे गाड़ी का चक्का है, घसते 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 गड्ढा हो जाता है। बट उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आके काफी साल हो गए हैं और ये बैन हो गया है। कोई भी देश अभी ये यूज नहीं कर सकता है। और साइंटिस्ट की अगर आप माने, रिसर्च पेपर्स जो आज आ रहे हैं, उनका कहना है कि 2040 तक ओजोन लेयर पहले जो हालात में था उस हालात पे वापस पहुंचेगा। तो मुझे ओजोन लेयर को लेके किताबों में है, ओजोन डे मनाते हैं, मेरे जैसे लोग जाके फीता उता काट देते हैं आर्ट एग्जीबिशन के। बट आज ओजोन लेयर की जो क्षति होनी थी हो गई, हमको समझ गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया, वो बैन हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं पुरानी जो स्थिति थी उस तरफ। एनी अदर क्वेश्चन सर? ओके सर। बंगबंधु, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। कोलकाता में कहां से हैं बताइए। हेलो सर। बोलिए, कहां से? सर मैं कूच बिहार से हूँ। कुछ बिहार, ओके। सर मैं दमदम से हूँ। कहां से? विश्वजीत रॉय, कहां से? सर मैं सुमन पात्र दमदम से हूँ। दमदम? दमदम। अरे मेरा घर है दमदम में भाई। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं डाइवर्शन ले रहा हूँ, माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के। अरे दमदम में मेरा घर है भाई। नागेर बाजार, नागेर बाजार। अच्छा सर, आमी चिड़ियामोड़। ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है। The world is very small, the world is very small. नंबर है भाई, अलग से बात करना, हम एकदम एक ही गांव के हैं। ठीक है सर। जो नागपुर के होंगे उनके लिए ये जो चिड़ियामोड़ और नागेर बाजार, धर्मपेट और सदानंद पेट ऐसा है।
सर मैं तो नागपुर कभी नहीं गया हूँ, मगर कभी भी आपकी आ बातों जाइए। से लग रहा है कि वो बहुत ही करीब है। आप आ जाइए बॉस, शहर है, अच्छा थैंक यू लगेगा सर, थैंक यू। सभी को, सभी श्योर लोग सर। हमारे शहर में आने के लिए सबको दावत है, कभी भी आइए। थैंक यू सर, आएंगे सर। पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक बेहतरीन शहर है। अगर कोई सर सवाल हो टेक्निकल, सर कोई मैं सवाल नागपुर किसी, से संदीप बात कर रहा हूँ। नागपुर आपने से नागपुर संदीप के लांजेवार जी, बोलिए बोलिए। यस यस आपने जो नागपुर की विशेषताएं बताई उसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं नागपुर से होकर इतनी जानकारी नहीं थी वो जी, आपकी सेशन के माध्यम से मैं जानकारी प्राप्त कर पाया हूँ। मैं थैंक यू विशेष सर, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपको। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, आपकी वाणी भी बहुत सुंदर है सर। जो आपका टोन है बात करने का, क्या मैं बात, आपसे बहुत प्रभावित हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। नागपुर में तो मिलो यार, आप यस अपना सर, शहर यस है सर, यार। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज थैंक मैं यू जो सर, कुछ हूँ, जो कुछ मैं हूँ इस शहर के कारण हूँ यार, थैंक यू सर। ऐसा है। सर आप कितने दिन कलकत्ता से बाहर हैं? मैं सुमन बोल रहा हूँ। हाँ, मैं क्लास, मैं जन्म के बाद मैं क्लास 1 में जब था तो मेरे पिताजी का ट्रांसफर कानपुर हुआ। मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे और वो अच्छा अच्छा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, आर्म्स एमुनेशंस बनाते हैं। फिर क्लास 1 मैंने कोलकाता में किया, फिर क्लास 5 से क्लास 10 मैंने कोलकाता में किया, केंद्रीय विद्यालय। अच्छा और 10th के बाद मैं नागपुर आ गया और मैं 10th के बाद से 11th 12th बीएससी एमएससी एमबीए रिसर्च सब मैंने नागपुर में किया है। सर, तो काफी मेरी, साल हो गया फिर। हाँ काफी 30-35 साल हो गए, हाँ सर। बट अंदर से बोंगी हूँ यार। मेरी थैंक यू सो मच सर, कर्मभूमि है थैंक यू। नागपुर एंड आई एम ए हाँ, प्राउड नागपुरियन, एब्सोल्युटली। अच्छा मतलब अच्छा। मैं बताऊं, मेरी एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि हर आईपीएल में हाँ हाँ। मैं केकेआर फैन हूं और मुंबई इंडियंस फैन हूं। अच्छा। और जो टीम पहले हार जाती है, दो टीम है मेरे पास बस, मेरे पास तो दो टीम है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली अब फाइनल में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हटा हुआ यार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राइट बस, नंबर है आपके पास, फोन करिए, बात कर सकते हैं। श्योर सर, राइट, श्योर सर। ओके सर। किसी को भी, अगर किसी को भी पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी बात करनी है, तो माय फोन इज 24/7, मैं अवेलेबल हूं। मैं एक जगह जॉब करता हूं, जैसा मैंने बताया, एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो अगर मैं मीटिंग में रहा तो फोन नहीं ले पाऊंगा, बट मैं कॉल बैक जरूर करूंगा। Sir, I have a question. या बोलिए मैडम। My name is Madhuri Marga and I'm from Kolhapur. Actually, I want to know about pollution control board, sir. It Pollution is control, alleged okay, fine. that it is not very, means it is inactive. So, Inactive, okay. yes. See, I'll tell you, ma'am, there is a Central Pollution Control Board. As your question is in English, so I'm replying in English. There is a Central Pollution Control Board, and under the Central Pollution Control Board, there are state pollution control boards. Like for Maharashtra, any state, the regional office, the state office of the State Pollution Control Board will be in the capital of the state. Like for Maharashtra, it will be in Mumbai. For Telangana, it will be in Hyderabad. For West Bengal, it will be in Kolkata, like this. And now, under that State Pollution Control Board, there are regional offices. Like we, in Maharashtra, we have one office in Nagpur, who will be taking care of Nagpur region. Nagpur region includes not only Nagpur, Gondia से लेके चंद्रपुर, यवतमाड़, ये सारी चीजें नागपुर रीजन में आ जाता है। सिमिलरली आप कोल्हापुर में है, तो कोल्हापुर एक बड़ा शहर है। अगर महाराष्ट्र के, इफ वी कंसिडर 6-7 big cities of Maharashtra, then Kolhapur is definitely one of them, and it is a holy city. मैं गया था। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तो एक्टिव, शुड बी एक्टिव मैम, बिकॉज अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्टिव नहीं है तो फिर कौन पोल्यूशन का ख्याल रखेगा। मीन्स कोल्हापुर में फर्स्ट देयर विल बी रीजनल ऑफिस, एंड the main responsibility of the officers of pollution control board to ensure that there is no pollution by the industries and there is no pollution by Kolhapur Municipal Corporation. And how much you have to be active, that depends. Because at the end of the day, very sorry to say,
it's a government job. So it being a government job, you know, ये अगर प्राइवेट होता तो शायद ज्यादा एक्टिव हो जाते. Understood, sir. Understood. Thank you, sir. Thanks for Thank you, answering. ma'am. Hello. Yeah, Sir, this is Dr. Abrar from Karnataka. Karnataka. Okay, sir. Tell me, Yes. sir. So, thank you so much for giving very good information on environmental issue, which is a major Yeah. one in the world. And also you have given the information in a very simple language, which is understandable by everyone. That's Thank you what I so much tried, for sir. that. That's why I always try, sir. Yeah. So I have one question, sir, Yeah. regarding the eco-friendly Ganapati Visarjan. Eco-friendly Ganapati Visarjan. Ganpati Visarjan. Yeah, tell me, sir. Yeah. So after immersing the Ganesh idols in the artificial tanks, Uh-huh. so after that, what you do with that? Wow, What that's you- great. Great question, sir. This is a very good question. See, what is happening is a devotee is coming with the idol with all malas and all together, right? Yes, yes. So first, we do pranam to Ganpati Bappa, our volunteers, and then we take out all the malas and nirmalyas and fool and all biodegradable material. Yes, yes. And we collect biodegradable material separately. Okay. Then we allow devotee to get in and then puja and do the immersion. Okay, okay. Now, the biodegradable material, NMC, Nagpur Municipal Corporation takes it and produce compost out of it by biocomposting. Acha. So, Nagpur Municipal Corporation have fixed private operators Okay. who, and a tender is being floated for this. For Ganpati Visarjan, the entire city, Nirmalya, Phool, the operator will take and they will make compost. Okay, sir. Okay. And they will sell the compost outside. Right. This is one. Secondly, the Visarjan, see, this is very interesting. That's why I said, very good question. The Visarjan test from Ganpati Visarjan, it starts from the second day itself. Okay. Like हमारे जो सलमान खान साहब हैं वो भी गणपति बैठाते हैं बट विसर्जन आप 1.5 दिन में करते हैं. That we call 1.5 दिन का गणपति. Acha. So the Visarjan, except the last day, on all other days, Visarjan ends say around midnight, 12 o'clock. Then from 2 o'clock to morning 6 o'clock, Nagpur Municipal Corporation team gets into action and they take out the water of this artificial tank, take it to the sewage treatment plant, and discharge that water there by tanker, and it gets treated and get discharged, okay, or gets reused. Okay. Now the clay which is Yes. remaining in the tank, mitti jo jami jo tank mein padi hui hai, Yes. that is collected and that is given to the murtikars to reuse. Okay. हाँ. जो मूर्ति जो बनाते हैं उनकी लाइन जी. लगी रहती है कि ये मूर्ति हम मिट्टी हमको दे दो. हाँ. So as on date, NMC is giving it free of cost. Right. अब the only problem is with the POP idols, जी. because POP idols जो है वो तो घुला नहीं है. जी. That remains as it is. जी. So it is collected and stored because you cannot do anything to that idols during that period because इसमें आस्था की बात है. जी. Now, for this, those who are from the chemistry background, they will know it better. What NMC does it, after the Ganpati Visarjan, say after a month or so, हाँ. that they make a huge tank, which they are made for the Ganpati Visarjan. In that tank, they put the idol and they add ammonium bicarbonate, 20% solution. हाँ. And then this gets melted, get dissolved, and it forms ammonium sulfate and calcium bicarbonate. अच्छा. Calcium bicarbonate is used by NMC itself for construction by mixing with cement and all. And the ammonium sulfate,
The only problem is that it also contains the heavy metal, because in the paint and other thing which is being used, that also goes to that sludge. ठीक है ना? Yes, sir. So that ammonium sulfate को अलग से treatment करना पड़ता है. अच्छा. This is one. And the second option is Nagpur Municipal Corporation just crush this POP idols and use it for road making or any other purpose. So the entire thing will be reused and recycled. Entire thing. The only challenge is this POP idols. Other than this, everything is in place. Everything is recycled and reused. So we can go for organic idols too, right, sir? I mean, Organic? Organic, I mean, Ganesh idols. That's great. That's great, na? See, I'll tell you, there is a college in Nagpur, Ramdev Baba Engineering College. So I was invited there 2-3 times as a guest for lectures and all. But I was surprised in one Ganpati Visarjan, because my team is there at Futala Lake, the happening lake of Nagpur, for all 10 days of Visarjan. I was surprised to see a huge number of students coming from Ramdev Baba College and to immerse their Ganpati of the college, and they made it of Kapoor. Alum. They made the entire murti of alum. Oh, okay. And their thought process was, if we may be allowed to do the immersion in lake because it's alum. Yes, so it will get the suspended particulate matters and all, but still NMC, Nagpur Municipal Corporation, didn't allow. So we requested them to do this Visarjan in a tank, and which helped us because it was a huge idol made of alum. So it settled the suspended particulate matters. Yeah. And now there are even Ganesh Mandals who are making metallic Bappa. And after Visarjan, they just immerse it and take it back to be used in next year. Right. Again, we can use it again. Like that. That's always better. Yeah. Well, thank you so much, sir. The problem is, इसमें आस्था की बात है. जी. And I tell you, boss, initial days when we used to tell them not to immerse their idols in lake, we face so much of challenges and people get so angry, and immediately they start comparing various religions. They tell me you are only for the Hindu festivals and all these things. And एक lady एक बार बोली कि अगर एक भाई साहब थे, sorry lady नहीं, भाई साहब बोले कि if you don't allow me मूर्ति का विसर्जन तालाब में, तो मैं मूर्ति के साथ पानी में कूदूंगा. तो हमारे वॉलंटियर ने बोला चलो सर हम भी कूदते, आपको वापस ले आएंगे. And all these things happens. One lady cursed our students, saying that if you don't allow me to immerse the idol in lake, you will fail exam. So आज के जनरेशन के बच्चे हैं, they said कोई प्रॉब्लम नहीं, एटीकेटी में विंटर में निकाल लेंगे. So all these things happens, it's fun. Yeah. But finally, Nagpur has changed. Last 2 years, not a single idol is immersed in lake, all in artificial lake. And इसके लिए thanks to Nagpur administration, thanks to political leaders, thanks to IS lobby, and above all, thanks to citizens of Nagpur. नहीं तो आप just imagine, one thing I would like to tell you was, again, जो हमारे कलकत्ता के दोस्त हैं वो सुनिए जी. यहाँ पे जो बड़े मूर्तियां हैं, वो उसके लिए जो आर्टिफिशियल टैंक बना है, that is about 15 kilometers from Nagpur city. Oh. And they are all बड़े बड़े ट्रक्स में अपने वो बड़े गणपति मूर्ति लेके they are going there with all श्रद्धा भक्ति, और वहां पे जाके नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्रेन लगा के उनकी मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं. एंड 2 दिन में करीब 1500 to 2000 मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है जी. एंड देयर इज नो कैजुअलिटी, देयर इज नो झगड़ा, देयर इज नो फसाद.
That's great, sir. मैं वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखता हूं, वहां पे अगर बोलेंगे कि दुर्गा देवी को लेके 15 किलोमीटर जाओ तो हंगामा हो जाएगा सर। जी जी। Congratulations for a great initiative, sir, and thank you so much for briefing everything. All credit to नागपुर की जनता। Yeah, thank you, sir. Thanks a lot. Right. Any other question? If not, great. Tomorrow we will talk about the initiatives taken by Government of India and Government of Maharashtra. Yes, sir. Very nice session, sir. Thank you. Thank you so much, Yeah, sir. Thank you so much. Thank you. So I Thank you, extend sir. my heartfelt thanks to respected Kaustubh sir for a very eye-opening sir. session for all the participants. See you tomorrow, sir, at 12 o'clock. We will 12 start o'clock, tomorrow's yes. session at 12 o'clock, sir. We have Thank to you so wind up session by 1:30 because immediately we will be having another meeting with the same login. So tomorrow we will meet at 12 o'clock, sir. Will Right, it be madam. And okay? I'll close it by 1:30. आज सारा पहला दिन था तो कभी समझा नहीं ओपनिंग बैट्समैन को कि 50 ओवर कब हो गया। Yes, sir. क्योंकि मैं क्या टाइम करूं भी मैडम, एक्सीड हो गया बट स्टिल ऐसे लग रहा था कि सुनते ही जाए। मैडम क्या करूं, बॉलर्स ठीक बॉलिंग है। कर रहे थे, बल्लेबाज बैटिंग कर रहा था, ऐसा हो गया। हाँ, यस सर। ठीक है चलिए, सर, thank you so रुकते much, हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हैव अ नाइस डे सर। Thank you so much. Thank you, so sir. much. Thank you. थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अपना फर्स्ट डे हम वाइंड अप करते हैं। मैंने शेड्यूल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। कल से हम मिलने वाले हैं 10:30 बजे, तो मीटिंग शुरू होगी 10:15 बजे। एक चीज मुझे और बतानी रह गई थी मॉर्निंग आवर्स में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हर दिन की लिंक अपनी अलग अलग रहेगी, तो आज की लिंक आप कल नहीं यूज करेंगे। मैं आज रात को दूसरी लिंक भेजूंगी कल के सेशन के लिए, तो आप उस लिंक से ज्वाइन करिए। हर दिन की अलग अलग वेबएक्स की लिंक रहेगी, सो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हर दिन के रात को लिंक आएगी जो दूसरे दिन के लिए रहेगी। तो ये आज की लिंक यहीं पे खत्म होती है। हम कल सुबह 10:15 बजे मिलेंगे और सेशन अपना 10:30 बजे शुरू होगा। तो सबको 10:15 बजे से ज्वाइनिंग करना है। 10:30 के बाद 5 मिनट में वेट करूंगी, उसके बाद मीटिंग ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन बाय 10:15। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने और एक अपनी वर्ड फाइल भेजी है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें लिंक्स फॉर सबमिशन दिया है। क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे चैट्स आते हैं तो वो गूगल फॉर्म कहीं मिस हो जाता है आप लोगों से, तो उसको फिर से ढूंढना पड़ता है। तो मैंने एक वर्ड फाइल भेजी है जिसमें सेमिनार टॉपिक सबमिशन की लिंक है, सेमिनार पीपीटी सबमिशन की लिंक है, और रिपोर्ट सबमिशन के डे वाइज मैंने लिंक दिए हैं 5 तारीख तक। तो उसमें आज की भी रिपोर्ट सबमिशन की लिंक है 2 जून की। वो लिंक को यूज करके आपको आज का रिपोर्ट, एक ही सेशन का रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। अभी जो खत्म हुआ रात के 12 बजे तक आज आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है मैडम। Okay, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। Thank you, क्या madam. होता है वो जो नेटवर्क की वजह से हमारा हम ऑप्ट आउट हो जाते हैं। ओके मैम, थैंक हमें एक एक जन अगर पूछिए, कुछ क्वेरी अगर है तो एक एक जन पूछिए। हेलो, हाँ मैडम। हाँ मैम आप मुझे सुन सकते हो ना मैम? आशा मेरा मैडम बोलिए। ये क्वेश्चन था कि कभी हाँ कभार जी, मैडम।